Assalamualaikum everyone. In today's video, we are going to discuss experiment number 12 of physiology, and this experiment is about hemocytometer. So, before we are going to start this lecture, I request to you to please subscribe to my channel, like my videos, and also share it with your friends. And the second thing is, me in the comment section and tell me how this video was and how I can give more informative content to you. So if you want to take a practical and want a practical from me, then you will comment me in the comment section. I will give the whole procedure and the content for this practical. So now we are going to start our lecture. So this practical is about the hemocytometer, and this hemocytometer can also be called as improved Neubauer chamber. So what is this hemocytometer? Now we discuss it. Hemocytometer is actually a counting chamber. Actually, it is an instrument which is used to calculate the number of blood cells. The word hemo means blood, and cyto word means cells, and meter word means measurement. So you are going to measure the numbers of blood cells which are present in your blood. So why it is necessary to calculate this number? Actually, a lot of diseases occur due to the decrease in the number of blood cells and due to increase in the number of blood cells. So you have to add them into a normal value. Okay. So the patient, for example, if a patient is of anemia disease, so in the anemia disease, you know very well, in this disease, the number of red blood cells decreases. So how you will indicate that this patient has decreased number of red blood cells? So you have to measure the number of red blood cells which is present in that person. So by counting them, at last you will find out that whether a person has anemia disease or not. So therefore, hemocytometer help us to calculate all of these calculations and to find out whether the person has different diseases due to blood cells or not. So now, hemocytometer was introduced by Kammer in 1805, and it is also modified by Thoma and Neubauer. Therefore, it is also called as improved Neubauer chamber. So the improved Neubauer chamber is very useful. It is used in every part. So that whenever a patient with anemia is going to a lab for a test, so his red blood cells are calculated with the help of this improved Neubauer chamber. So it is really helpful and present in all the labs, research labs and etc. So it is going to count your blood cells, for example, your red blood cell, your white blood cell, your eosinophils, your platelets, and all of that things. So what are the parts of that hemocytometer? So a hemocytometer has a first part, which is counting chamber. So in the counting chamber, you are going to count all the red blood cell which is present in your body. So you will actually you are going to take one drop and then count the red blood cell number in your this one drop, and after that you will calculate how amount of blood is present in your body. So this counting chamber is a special slide, जिस तरह माइक्रोस्कोप की स्लाइड होती है. So this slide has H shape and have a trough in the extended right across the middle in such a way that the trough encloses two platform with a counting area. So I explained to you this paragraph with the help of diagram of hemocytometer slide, and after seeing that slide you will be easily detect how it is. So this is the diagram of improved Neubauer chamber. You see here that like apparatus, it has a pipette in it, and this is a fluid जिसमें हम लोग यहाँ से ये वो पाइपेट है जिससे हम ब्लड को सक्स करते हैं और यहाँ से हम लोग ब्लो आउट उसको करते हैं ताकि वो बाहर आ जाए. ये हमारा पिपेट है, ये अलग होता है, रेड ब्लड सेल के लिए अलग होता है, वाइट ब्लड सेल के लिए अलग होता है. ठीक है.
ये हिमोसाइटोमीटर की कंपोनेंट है, और ये मैं आपको कह रही थी कि एच शेप का इसका होता है। सो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये एक स्लाइड है, ये स्लाइड का फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है, ये स्लाइड का लेटरल व्यू दिखाया हुआ है। यानी इसी स्लाइड को अगर मैं यहाँ उठा के ऐसे रख दूँ तो ये बिल्कुल इसी तरह की स्लाइड है, ठीक है। सो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि एच शेप जो है वो इसकी बन रही है। ये स्लाइड में डिवीजन्स होती हैं इस तरह की, कि ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला आप देख रहे हो, ये थोड़ा ऊपर की तरफ होता है जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। बिल्कुल ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा है कि वो ऊपर की तरफ होता है, ये वाला भी ऊपर की तरफ होता है, बाकी ये चीज़ ऐसे नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो ये फिलर ट्रफ्स है, यहाँ पर आप फिल करते हो अपना ब्लड का जो ड्रॉप है ना, वो यहाँ पर रखते हो, और उसके ऊपर ये जो एक दिखाया हुआ है जिगजैग की शेप में, ये कवर स्लिप होती है। आपको पता है कि माइक्रोस्कोप की हर स्लाइड के ऊपर हम एक कवर स्लिप को रखते होते हैं, तो ये वही चीज़ है। तो कवर स्लिप इस पे और इस पे आएगी, इधर नहीं आएगी, ठीक है। और ये है हमारे चैम्बर्स और काउंटिंग ग्रेड, ये वाला चीज़, और यहीं से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। हमें इसी स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ से इस पार्ट से और इस पार्ट से काउंट करते हैं। Wide and 3 millimeter long are engraved at the center of each platform. सो मैंने जहाँ आपको एक प्लेटफॉर्म का सेंटर दिखाया था, जहाँ पर एक बॉक्स इस तरह का बना हुआ था, उस बॉक्स का एरिया वो दिखा रहे हैं कि वो स्मॉल स्क्वायर है, और उसका एरिया 33 मिलीमीटर वो वाइड होता है, और 33 मिलीमीटर ही वो लॉन्ग है, ठीक है ना। स्क्वायर में लेंथ और विड्थ इक्वल होती है, और वो लेंथ और विड्थ हमारी 3 मिलीमीटर है। और फिर उसके बाद हमने उसमें इंग्रेव किया हुआ है, ठीक है। वो पार्ट थोड़ा सा इंग्रेव होता है, और उस एरिया के अंदर जो एक स्क्वायर है और 3 मिलीमीटर का है, उसके अंदर हम बहुत सारे स्क्वेयर्स और बनाते हैं। यानी 9 लार्ज स्क्वेयर बनाते हैं, हर 1 मिलीमीटर के अंदर एक स्क्वेयर आता है, ठीक है। तो टोटल 3 मिलीमीटर्स हैं, तो हर 1 मिलीमीटर में एक स्क्वेयर आ रहा है, तो 3 मिलीमीटर में 3 बड़े स्क्वेयर्स आएंगे। अब 3 बड़े स्क्वेयर्स विड्थ की तरफ आएंगे, 3 बड़े स्क्वेयर लेंथ की तरफ आएंगे। तो इस तरह से 9 जो हैं वो टोटल लार्ज स्केल्स जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है ना। अब विड्थ भी, यहाँ की विड्थ, यहाँ की विड्थ, यहाँ की विड्थ, यहाँ की विड्थ, तो मतलब यहाँ एक 3, ये 3, ये 3, ये वाला 3, ये 2, मतलब 1 1 2 इस तरह से ये स्क्वायर है ना। तो फ़र्ज़ कर लो कि ये इसकी विड्थ भी 3 मिलीमीटर ही है, और लेंथ भी 3 मिलीमीटर की है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 3 स्क्वेयर्स हैं, 1 मिलीमीटर के अंदर एक आते हैं, यानी 1 मिलीमीटर, ये दूसरा मिलीमीटर, ये तीसरा। इसी तरह इसका 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, इस तरह इसके 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, इस तरह से ये स्क्वेयर्स बनते हैं, और ये टोटल 9 इस तरह से ना बन जाते हैं, ठीक है। ये मैंने तो यहाँ एक रफ सी डायग्राम आपको बना के दिखाई है। एक्चुअली ये 9 स्क्वेयर्स इसके बनते हैं, और हर 1 मिलीमीटर के अंदर एक स्क्वेयर आता है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वेयर आते हैं। द 4 लार्ज स्क्वेयर्स इन द 4 सेंटर आर यूज टू काउंट द वाइट ब्लड सेल्स। तो इसी स्क्वेयर के अंदर जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म एक दिखाया था, जो ऊपर की तरफ इस तरह के 2 प्लेटफॉर्म थे ना, यहाँ बाकी एच शेप थी, तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, ये वाला प्लेटफॉर्म, इसके जो कॉर्नर्स पे होते हैं ना, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर, ये जो 4 बड़े कॉर्नर्स बनते हैं इसके, इस पे हम लोग वाइट ब्लड सेल्स को कैलकुलेट करते हैं। यानी यहाँ पर जब हम ब्लड रखेंगे, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इन पार्ट में जो हमें वाइट ब्लड सेल माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आएंगे ना, हमने वहाँ पर वही काउंट करने हैं। और each of these square is divided into 16 small squares total leukocyte count। तो ये 4 स्क्वेयर्स जो है ना, इनके अंदर फर्दर स्क्वेयर्स हैं,
16 स्क्वेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस स्क्वेयर के अंदर 9 जो है वो स्क्वेयर्स फिट किए थे और वो स्क्वेयर यहाँ पर था। अब अगर इन चारों स्क्वेयर्स की हम लोग बात करते हैं ना, तो इनमें से हर स्क्वेयर के अंदर 16 और स्क्वेयर्स हैं, मतलब इतनी ज़्यादा स्मॉल जो है वो डिवीजन की गई है। अब द स्क्वायर एट द सेंटर इज़ यूज फॉर द काउंटिंग ऑफ रेड ब्लड सेल। सो ये जो स्क्वायर जो सेंटर में मैंने आपको बनाया है, ये यहाँ पर आप RBCs को काउंट करेंगे, जबकि साइड पे जो 4 हैं वहाँ पर आप वाइट ब्लड सेल्स काउंट करेंगे। So the square is divided into 25 medium-sized squares having arm 1 by 5 millimeter and 1 by 25 millimeter area और वॉल्यूम उसका ये बनता है। सो इसी तरह वो कह रहे हैं कि सेंटर में तो आपने रेड ब्लड सेल्स काउंट करने हैं ना। सो इन स्क्वायर को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, उसमें 25 उसका साइज़ आ जाता है और स्क्वायर्स के वो साइज़ उन्होंने आगे आपको दिखाया हुआ है कि 1 by 5 मिलीमीटर का है, 1 by 25 मिलीमीटर का एरिया है और वॉल्यूम भी दिखाया हुआ है 1 आवर 250 मिलीमीटर क्यूब का जो है वो उसका वॉल्यूम आ जाता है। सो यहाँ हर जो स्क्वायर है उसका कितना एरिया है, कितना वॉल्यूम है, ये सारा चीज़ें जो है वो आपको बताई हुई हैं। बस जो मेन चीज़ आपने इस प्रैक्टिकल के बारे में याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि जो हमारी स्लाइड प्लेट होती है उसमें एक तो पहली बात ये है कि हाइट का डिफरेंस आ जाता है कि कवर स्लिप जब आती है तो कवर स्लिप के साथ एक नीचे जो है बिलो में एक फासला आता है, फासला क्रिएट होता है और वो फासला 0.1 मिलीमीटर का होता है। सेकंड चीज़ आपने ये याद रखनी है कि इन स्लाइड जो एच शेप की होंगी उनके ऊपर बहुत सारे छोटे स्क्वेयर्स होते हैं, लेकिन एक जो बड़ा स्क्वेयर होगा, ये एक बड़ा स्क्वेयर जो होगा इसमें 3 मिलीमीटर की लेंथ और 3 मिलीमीटर की विड्थ होगी। अब बाकी आगे इसके अंदर स्क्वेयर्स आ जाते हैं, जो 4 स्क्वेयर्स जो इसके कॉर्नर्स पे होते हैं वहाँ से हम लोग WBC इसको कैलकुलेट करते हैं और वो स्क्वायर फर्दर डिवाइड होते हैं और बहुत सारे 16 स्क्वायर्स के अंदर। अब जो एक सेंटर में स्क्वायर होता है उससे हम लोग क्या करेंगे, रेड ब्लड सेल्स को कैलकुलेट करेंगे और उसमें भी बहुत सारी जो है इसी तरह की डिवीजन्स आ जाती हैं। ईच ऑफ दी स्क्वायर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 16। वही बात हो गई कि इसका भी स्क्वायर फर्दर 16 स्क्वायर्स के अंदर डिवाइड हुआ है। हैविंग आर्म इतना, ईच ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़, यहाँ पर एरिया बताया हुआ है, उसका वॉल्यूम बताया हुआ है, जिस तरह हमने वाइट ब्लड सेल को बताया था ना वॉल्यूम, और ये इसी तरह ही अब हम इसका बता रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स आर काउंटिंग इन 5 मीडियम साइज स्क्वायर्स। तो रेड ब्लड सेल्स को 5 मीडियम साइज स्क्वायर्स के अंदर जो है इसी यानी इस स्क्वायर के अंदर फर्दर डिवीजन वो बता रहे हैं और उसका हमने नाम रख दिया। जाहिर बात है, अब ये वाला जो स्क्वायर है दरमियान वाला, इसको अगर मैं जूम करूँ तो ये इस तरह होगा। अब इसके भी 4 कॉर्नर्स बन सकते हैं। सो जो 4 कॉर्नर बनेंगे, एक दरमियान वाला 5वां, तो ये 5 कॉर्नर्स पे हम R1, R2, R3 और R4 का जो है वो नाम दे देते हैं। हर 4 कॉर्नर्स हैं और एक सेंट्रल स्क्वायर आ जाता है जिसको हम R5 कह रहे हैं, बाकी जो है वो कॉर्नर्स के स्क्वायर्स आ जाते हैं। अब आगे लिखा हुआ है RBC पाइपेट। अब क्यों हमें ये RBC पाइपेट चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द RBCs with the help of this RBC pipette. So now I will show a diagram to you and this diagram will help to understand all of this concept. सो अब आप लोग ये डायग्राम देख सकते हैं, ये एक इम्प्रूव न्यू बार चैम्बर दिखाया है। ये पूरी स्लाइड है, ये आप देख सकते हो कि स्लाइड का कवर आया हुआ है और ये उसके ऊपर वही एच सिस्टम दिखाया हुआ है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्पेस है जिससे नीचे वाला जो कवर स्लिप का शीशा है वो नज़र आ रहा है। सो ये है इम्प्रूव न्यू बार चैम्बर और इसकी डेप्थ दिखाई हुई है, कितना वॉल्यूम है ये दिखाया हुआ है। सो ये वही कवर स्लिप यहाँ पर आई हुई है जिसके ऊपर स्लाइड आई हुई है, जिसके ऊपर हमने कवर ग्लास डाला हुआ है, ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। और यहाँ पर उसका फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है कि किस तरह से ये काउंटिंग चैम्बर, इसके ये वाले 2 काउंटिंग चैम्बर और फिलिंग नॉट्स भी यही होता है। बाकी जो है उसको हम ओवरफ्लो स्टेम कहते हैं। तो यहाँ पर जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ये आपको ऐसे नज़र आएगा, ये वाली चीज़ आपको, ये वाला जैसे वो कह रहे हैं, तो ये आपको ऐसे नज़र आएगी। फिर आप इसको फर्दर जूम करोगे तो आप देख सकते हो कि एक ही स्क्वेयर्स के अंदर कितने सारे स्क्वेयर्स आ गए हैं। अब आपने इसको काउंट कैसे करना है, आप ये देख सकते हो। मैं एक छोटी सी फर्दर लाइंस जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखो, तो ये स्क्वेयर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4,
ये तो कैलकुलेट करने की यूज़ होंगे WBC। तो ये जो दरमियान वाला है ये आपका RBC को कैलकुलेट करने, इसके अंदर फर्दर 16 स्क्वेयर्स होंगे और इसके अंदर हर के अंदर 16 स्क्वेयर्स होंगे। ठीक हो गया। और बाकी चीज़ें इसके स्क्वेयर्स और इसके वॉल्यूम्स जो हैं वो दिखाए हुए हैं, तो वो आपने ज़बानी याद करने होंगे। तो ये हमारा RBC पाइपेट है जिसके बारे में आगे हमने पढ़ना है। तो आप इसकी पहले ही डायग्राम देख दें। इस तरह का ये पाइपेट होता है। यहाँ पर इसका एक बल्ब, एक स्वेल हुई जगह होती है और यहाँ एक रेड डॉट जो है वो रेड बीड जो है वो रखा हुआ होता है। ये रेड बीड हमें बताता है कि ये RBC पाइपेट है। जब हम जाते हैं ना WBC पाइपेट के अंदर तो वहाँ पर रेड नहीं होता, वहाँ पर वाइट होता है, तो हमें डिफरेंस पता लग जाता है। अब ये पाइपेट्स ना डिफरेंट होते हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की अगर मेजरमेंट करनी है तो वहाँ के लिए एक अलग पाइपेट चाहिए होगा। अगर वाइट ब्लड सेल्स की करनी है तो वहाँ के लिए एक अलग पाइपेट चाहिए होगा। यहाँ पर ये कैलिब्रेटेड स्टेम है जिसके ऊपर कैलिब्रेशंस की गई हैं। ये लिखा हुआ है कि यहाँ तक 1 यूनिट पूरा होता है, यहाँ तक 100 यूनिट पूरे हो जाते हैं। मतलब इस तरह की रीडिंग्स इसके ऊपर लिखी हुई होती हैं और टोटल जो रीडिंग्स है वो 101 यूनिट्स की होती हैं। ठीक है, ये 1 यूनिट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 0 पॉइंट में इसकी वैल्यूज़ आती हैं और यहाँ से यहाँ तक पूरे 100 यूनिट्स हो जाते हैं, इसलिए 101 यूनिट्स की ये RBC पाइपेट है। अब हम आगे इसके बारे में ही पढ़ते हैं। So RBC pipette is consist of glass stem having capillary tube in which it opens in a bulb containing the red blood। जो red blood नहीं है, red bead है। आप यहाँ इसको करेक्ट कर लें, BEAD। ठीक है। सो इसमें भी वही एक ग्लास की स्टेम है पूरी जो कैलिब्रेट हुई हुई है, एक पाइपेट है कैपिलरी ट्यूब के साथ है ये। और इसका जो ओपन है वो एक बल्ब में होता है, तो मैंने आपको दिखाया एक स्वेलो हुई जगह और उसके ऊपर एक रेड बीड है जो कि डिटेक्ट करवाता है, हमें बताता है कि ये एक RBC पाइपेट है। एंड द ऑपोजिट टू द बल्ब इज अगेन देयर इज अ स्मॉल स्टेम। तो मैंने आपको दिखाया है पीछे से एक स्मॉल स्टेम आ रही है, आगे एक बल्ब आ रहा है और फिर आगे देन अगेन अनदर स्टेम इज फॉर्म। सो द स्मॉल स्टेम इज कनेक्टेड टू रेड कलर माउथ पीस। तो जो स्मॉल ट्यूब है ना उसके आगे जाके एक रेड कलर का माउथ पीस जो है वो लगाया हुआ होता है। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है उसमें वो चीज़ नहीं बनी हुई है। ठीक है। सो अगर आप जब रियल में इसको देखेंगे तो वहाँ पर एक रेड माउथ सा बना हुआ होगा एंड विद द हेल्प ऑफ रबर ट्यूब। तो उसमें एक माउथ पीस के साथ एक रबर ट्यूब लगाई होगी, वो सेक्शन के लिए इस तरह की चीज़ों के लिए काम आता है। तो स्टेम हैज़ 3 मार्किंग। स्टेम जो टोटल है ना स्टेम जिसमें मैंने आपको कहा कैलिब्रेशंस की गई होंगी, तो उसमें 3 टोटल मार्किंग होती है। सबसे पहले 0.5, 0.5 से 1 तक वो 1 यूनिट जो बन रहा था वो, और साथ हमने फिर कहा था कि 1 से 100 तक सारे यूनिट्स उस बल्ब में आ जाते थे और फिर आगे 101 जो है वो यूनिट्स बनते थे। तो यही 3 मार्किंग जो है वो उसके ऊपर की गई होती है। फ्रॉम द टिप ऑफ पेपेट टू द मार्किंग ऑफ 0.1। सो टिप से लेकर उस तक 0.1.0 की मार्किंग होती है एंड देयर आर इक्वल डिवीजन्स एंड देयर इज अ सिंपल डिवीजन नॉट एनी स्पेसिफिक यूनिट। तो ये एक सिंपल डिवीजन है, स्पेसिफिक नहीं है। मतलब आप कहें कि बिल्कुल स्पेसिफिक है 0.5 का होना, 1.0 का होना या 101 का होना, ही नहीं, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये सिंपल डिवीजन की गई है ताकि आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकें। So the stem has capillary and one of the parts of bead has contain 100 parts। तो स्टेम के अंदर एक कैपिलरी आ जाती है और एक पार्ट के अंदर 100 पार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है ना। सो मैंने आपको दिखाया है जो 1 से लेकर 100 तक पूरी डिवीजन है, तो बल्ब में पूरी 100 डिवीजन्स जो है वो पूरी होती हैं। Bead of the stem serve as a purpose of first miniming of the blood with diluting fluid and the other is acting with the identification mark of red blood cell। तो मैंने आपको कहा कि 2 जो है ना रेड कलर के मार्क्स होंगे, एक तो वही बल्ब के ऊपर, और जो बल्ब के ऊपर है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये रेड BC का पाइपेट है। एक और बीट होता है जो मैंने आपको कहा कि रेड कलर माउथ पीस होता है रबर बैंड के साथ, तो वो जो है मिनिमिंग ऑफ ब्लड में काम आता है। तो ये हमने रेड ब्लड सेल्स के बारे में जो है वो पढ़ लिया है, रेड ब्लड सेल की पाइपेट क्या होती है। अब हम WBC की पाइपेट के ऊपर जाएंगे कि वो क्या चीज़ है और उसका प्रोसीजर हम लोग देख लें। सो दिस पाइपेट इज सिमिलर इन शेप एक्सेप्ट द साइज ऑफ बल्ब इज स्मॉलर सॉरी। सो इसमें भी बिल्कुल सेम वही शेप होगी जैसे मैंने आपको RBC पाइपेट की दिखाई है, जस्ट जो डिफरेंट होगा जो उसका बल्ब है वो थोड़ा उससे कम होगा।
आरबीसी का बल्ब थोड़ा फैला हुआ होगा और इसका कम होगा। मैं आपको पिक्चर में दिखाती भी हूँ। मार्किंग्स इसकी भी वही हैं, देखें 0.5, 1.0, 1.11 एंड द बल्ब कंटेन वाइट बीट, और उसमें वाइट बीट होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेड ब्लड सेल्स में वो आइडेंटिफाई करता है मार्क के रेड ब्लड सेल ये पाइपेट है, और वाइट ब्लड सेल में वाइट कलर का बीड होगा और कलर ऑफ द माउथ पीस भी वाइट होता है। ठीक है, सो मैं अब आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। अच्छा, पहले आप यूजेस देख लें कि यूजेस क्या हैं काउंटिंग चैम्बर के। तो रेड ब्लड सेल का जो चैम्बर है उसमें आप रेड ब्लड सेल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लेटलेट्स भी करेंगे और रेटिकुलोसाइट वगैरह भी कैलकुलेट करेंगे, जबकि डब्ल्यूबीसी में सिर्फ आप डब्ल्यूबीसी इसिनोफिल्स को काउंट कर सकते हैं। प्रोसीजर हम बाद में देखेंगे, पहले आप रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। और मैं आपको डिफरेंस भी बताती हूँ कि रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल की में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इनकी पाइपेट में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि डब्ल्यूबीसी की पाइपेट दिखाई हुई है, बिल्कुल वही शेप है, बस यहाँ पर बल्ब थोड़ा सा छोटा हो गया और यहाँ पर वाइट बीट आ गया। यहाँ पर भी देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट बन रहा है और यहाँ से यहाँ तक 10 यूनिट्स जो हैं वो बन रहे हैं। टोटल 11 यूनिट है, डिफरेंस यही चीज़ आ जाती है। वहाँ पर यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल था वहाँ पर यहाँ 100 यूनिट बन रहे थे और यहाँ पर 101 का यूनिट था, बट यहाँ पर सिर्फ 10 यूनिट्स बन रहे हैं और टोटल जो यूनिट्स हैं हमारे कुल मिला के जब हम देखते हैं तो वो 11 बन रहे हैं। और आगे स्टेम होती है और इसके आगे एक वाइट कलर का बीड होता है। सो अब हम डिफरेंस देखते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो रेड ब्लड सेल की पाइपेट की कैलिब्रेशन आपको पता है कि 0.5 होता है, फिर 0.1 है और उसके बाद हमारे पास क्या आता है 101 आ जाता है। ठीक है, तो ये बिलो द बल्ब है, ये जो है 0.5 और 0.1 ये बल्ब के बिलो आ रही है। बल्ब यहाँ है, बल्ब के पीछे ये 0.5 की कैलिब्रेशन हुई है अगर आपको नज़र आ रहा हो, और ये वाली जो कैलिब्रेशन है ये 1.0 है। सो ये बल्ब के पहले आ रही हैं और बल्ब के जो बाद है वो 101 की कैलिब्रेशन आती है इन द केस ऑफ रेड ब्लड सेल्स की पाइपेट में। और कैपिलरी ट्यूब जो होता है कैपिलरी बेस इज़ नैरो, थस इट इज़ स्लो स्पीड पाइपेट। सो जो उसका कैपिलरी बेस होती है वो थोड़ी नैरो होती है, तो इसलिए ये स्लो स्पीड पाइपेट होता है। बल्ब इज़ लार्ज एंड हैज़ रेड बीट, तो उसके केस में ये बल्ब बड़ा होता है और यहाँ रेड बीट होता है डब्ल्यूबीसी की पाइपेट में, और सॉरी रेड ब्लड सेल की पाइपेट में। और वॉल्यूम ऑफ द बल्ब इज़ 100 टाइम्स वॉल्यूम कंटेन इन द स्टेप। सो यहाँ का जो वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से 1 यूनिट आ रहा है, यहाँ 100 यूनिट्स आते हैं रेड ब्लड सेल पाइपेट के केस में। तो वो यही इस वजह है क्योंकि उसका साइज़ डिफरेंस है, यहाँ साइज़ 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी के पाइपेट की बात करें तो यहाँ आप कैलिब्रेशन का पहला डिफरेंस देंगे कि यहाँ की कैलिब्रेशन 0.5, 1.0 और उसके बाद 11 होती है बल्ब के बाद। सो कैपिलरी बेस यहाँ की थोड़ी वाइडर होती है, इधर की नैरो है, इधर की वाइडर है, और इस वजह से इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट होती है। जो बल्ब है वो थोड़ा स्मॉल होता है और इसके अंदर वाइट बीड होता है, यहाँ आप देख सकते हो। और वॉल्यूम ऑफ बल्ब इज़ 10 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम स्टेम। तो यहाँ इसका वॉल्यूम अपनी स्टेम से सिर्फ 10 टाइम्स है। सो जितने यूनिट यानी उतना ही वो उससे ज़्यादा बड़ा होगा वॉल्यूम उसका। ठीक है, सो ये हमने डिफरेंस देख लिया। अब हम प्रोसीजर देखते हैं कि मतलब आप किस तरह से इसको लेंगे, इस न्यू बार चैम्बर से किस तरह से आपने डीलिंग करनी है। मतलब जब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जाएंगे तो आपने किस तरह से इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, सो अब हम लोग चलते हैं हम अपने प्रोसीजर की तरफ। सो यहाँ हमारा प्रोसीजर है कि आपने सबसे पहले जो काम करना है वो आपने क्लीन करना है अपने न्यू बार चैम्बर को विद द माइल्ड डिटर्जेंट सोल्यूशन एंड लेट इट ड्राई। ठीक है, तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि यहाँ पर आपने स्मॉल स्मॉल जो है रेड ब्लड सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को काउंट करना होगा। सो अगर कोई भी इम्प्योरिटी या डस्ट के पार्टिकल्स होंगे तो आप सही तरह से उसे काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने उसको एक माइल्ड डिटर्जेंट से साफ़ करना है ताकि उसके ऊपर जो भी डस्ट है या जो भी बैक्टीरिया है वो साइड पे हो जाए। और फिर उसके बाद आपने उसको ड्राई कर लेना है अच्छी तरह से और उसके बाद आप अपना एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर आप लोग देख सकते हैं कि आपने प्लेस करना है इट ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। आपको पता है कि ये हमने जो है ये सारी चीज़ें हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखनी है।
तो इसलिए आप फिर इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे लेके आएंगे और फोकस करेंगे काउंटिंग चैम्बर के ऊपर, ठीक है। आपने अपने माइक्रोस्कोप का लेंस सेट करना है, अपने माइक्रोस्कोप को सारा सेट करना है। माइक्रोस्कोप की सारी सेटिंग्स और उसके सारे पार्ट्स मैंने दिए हुए हैं अपनी वीडियो में, और इस वीडियो का नाम है हिस्टोलॉजी ऑफ माइक्रोस्कोप। सो आप जल्दी से जाएं, उसको देखें। माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप के सारे पार्ट्स वहाँ पर दिए हुए हैं और आप उसमें देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोप को ऑपरेट किस तरह से करना है आपने वो भी सारा दिया हुआ है। सो आपको पहले वो पता होगा तो ही आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि आपने इधर माइक्रोस्कोप से ही काउंट करना है। तो माइक्रोस्कोप के स्टेज को आप एडजस्ट करेंगे और फोकस करेंगे उसको काउंटिंग चैम्बर के ऊपर, उसके लेंस को। और पावर आपने लो रखनी है। माइक्रोस्कोप के लेंस की जो पावर आप रखेंगे वो 10x रखेंगे। आपको पता है कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोप में 40x भी होता है, 100x भी होता है, बट आपने उस पर नहीं जाना, 10x पे रखना है। और फिर आपने स्टडी करना है ऑल स्केयर्स को, ठीक है। हर स्केयर के अंदर के कितने आपको रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल नज़र आ रहे हैं, आप काउंटिंग करेंगे। टर्न द नोज पीस ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड फोकस द चैम्बर अंडर द हाई पावर। सो आपने नोज पीस के अंदर पहले तो हमने रखा था ना लो पावर वाला लेंस, 10x रख दिया था। फिर उसके बाद आपने हाई पावर जैसे 40x हो गया या 100x हो गया, तो फिर आपने इसको यूज़ करके और फिर काउंट करना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि 10x से सारे जो हैं वो आपको RBC नज़र ना आए, तो इसलिए आपने एक दफ़ा हायर पावर से भी लेंसेज से कैलकुलेट कर लेना है। So study all the scare carefully. So now we will discuss the precautions. So precautions of this experiment is that chamber should be clean, dry and grease free. So whenever it has some dust, then you will cannot count the correct number of RBCs. You should be have mistake in it. Second precaution is that don't hold the cover strip from its flat side, hold it from the edges. So आपने उसकी फ्लैट साइड जो होगी, जैसे ये स्लाइड है तो आपने इसको ऐसे नहीं पकड़ना है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आप कंसीडर करो कि ये हमारी वही स्लाइड है, कंसीडर इट, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे नहीं पकड़ना कभी भी, तो आपके हाथ के ऊपर जो भी जर्म्स होंगे वो उसको लग जाएंगे। आपने इसको एजिस से इस तरह से पकड़ना है, आप ऐसे स्लाइड को पकड़ेंगे, ठीक है। सो और उसके बाद लाइट शुड बी मिनिमम मैक्सिमम वाइल लुकिंग एट द माइक्रोस्कोप। तो लाइट अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक एक डॉट को काउंट करना है, तो लाइट अच्छी नहीं होगी तो कैसे काउंट होगा। एंड में ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं कि इससे हमें क्या पता लगेगा इस एक्सपेरिमेंट से। सो बाय स्टडिंग दी वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई RBCs ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो हमें पता लग जाएगा कि RBCs किस तरह का रेड ब्लड सेल। मैंने आपको दिखाया है कि उसी न्यूबार चैम्बर में स्क्वेयर्स होंगे और उसी स्क्वेयर से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ रेड ब्लड सेल्स होंगे, यहाँ वाइट ब्लड सेल्स होंगे। Identify the various scales of the Newbar's chamber and tell the size and volume of big, medium and small scales. तो यहाँ पे big भी होंगे, medium भी होंगे, small scales भी होंगे। तो आपने उसका साइज़ और वॉल्यूम बताना है, जिसे मैंने आपको पहले ही दिखाया। वहाँ पर स्केयर्स के सारा कुछ वॉल्यूम और सब कुछ दिखाया हुआ है। सो लास्ट में आप लोग क्या करेंगे कि आपने इसी के चार्ज करना है। आपने इसी न्यूबार्स की चैम्बर को चार्ज करने का क्या मतलब होता है कि आपने इसके ऊपर अपना ब्लड को प्लेस करना है। सो इसी को हम लोग चार्जिंग कहते हैं। अब कहाँ से आपने इसको चार्ज करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे डायग्राम से, और सारा समझाऊंगी कि आपने कैसे करना है। सो ये हीमोसाइटोमीटर है, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको ये दिखा रही हूँ। तो आपने चार्ज यहाँ इसको कैसे करना है। सो आप यहाँ की चार्जिंग कैसे करेंगे, यहाँ से आपने पहले तो अपना ब्लड निकालना है। ब्लड निकाल के आपने उस ब्लड को इस वाली पाइपेट के अंदर, ये जो यहाँ पड़ा हुआ है, इसके अंदर फिट करना है। ये रेड ब्लड सेल पिपेट है, इसके अंदर आप फिल करेंगे उसको। मतलब आपने जैसे यहाँ से अपने आप फिंगर को प्रिक किया, प्रिक करने के बाद आप इसी को उठाएंगे और ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल कंसीडर कर लें ये वही जो है ये पाइपेट है। आप इसको ऐसे रखेंगे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसी तरह के में जैसे मैंने ये रखा हुआ है ऐसे रखेंगे। मैं आपको अगर इस तरह दिखाऊँ, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह रखने के बाद आपने इसमें से सारा ब्लड को निकाल लेना है, और जो उसमें है ना वो बबल नहीं फिल होने देने। ये करके उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको चार्ज करेंगे। ये आपके सामने जो होगी स्लाइड पड़ी हुई होगी, आप इसी को उठाएंगे। आप इस पाइपेट को यही पॉइंटर समझ लें और यहाँ से ऐसे रख लेंगे,
वो सारा इसमें जो ब्लड होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा। इसको यहाँ से चार्ज करना है, यहाँ ऐसे नहीं रखना, यहाँ ऐसे नहीं रखना, इस तरह से ऐसे करके आपने थोड़ा सा ब्लड जो है वो डालना है, ठीक है। और इस तरह से भी आप ऐसे करके थोड़ा सा ब्लड जो है वो डाल देंगे। तो ये सारा ब्लड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपने कवर स्लिप रखनी है, कवर स्लिप बिल्कुल ध्यान से रखनी है कि यहाँ पर कवर स्लिप, यानी आपको जो ब्लड आया है ना उसी के ऊपर ही कवर स्लिप आ जाएगी। अब फिर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेंगे और आपको सारी रीडिंग्स पता लग जाएंगी, ठीक है। सो लास्ट में आपके पास आ गई हैं जी कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन कि आपने किस तरह से ऑब्जर्व किया है। सो रेड ब्लड सेल की काउंटिंग के लिए ये ऑब्जर्वेशन है, वाइट ब्लड सेल के लिए ये है। सो रेड ब्लड सेल्स आर काउंटेड इन 4 कॉर्नर्स ऑफ ग्रुप एंड 1 सेंट्रल ग्रुप। सो मैंने आपको बताया कि रेड ब्लड सेल्स के 4 जो हैं ग्रुप्स होंगे और ना कॉर्नर्स पे होंगे और दरमियान में एक फिफ्थ ग्रुप होगा। सो जिसको हमने इंडिकेट किया बाय R1, R2, R3, R4 एंड R5। So now each of which has 16 small square in it. In the case of red blood cell counting, we also has 4 large squares at the corners, and each of these squares have 16 small medium sized squares. Now for example in total 80 small squares आ जाते हैं। स्मॉल एरिया और स्मॉलेस्ट स्केयर, तो पहले आपने कैलकुलेट करना है एरिया जो बिल्कुल स्मॉल स्केयर का होगा। So 1 over 20 millimeter multiplied by 1 over 20, it will become 1 over 400 millimeter. Now you calculate the depth of each chamber, and I told to you that the depth of chamber is 0.1. So 0.1 can be written as 1 over 10 millimeter. वॉल्यूम को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, डैट 1 over 400 मिलीमीटर जो इसका एरिया निकला था इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेप्थ से 1 over 10 millimeter. So it will come out 1 over 4000 millimeter cube. So volume is always expressed in millimeter cubes. So you should be careful of it. Now you calculate the WBC's counting. So WBC counting is done at the 4 corners, and each of these 4 corners is further divided into the medium size 16 squares. Now you calculate the size of median one. This is really important कि जो आपका रेड ब्लड सेल के केस में स्क्वायर आ रहा है उसका साइज है स्मॉल, और जब आपका वाइट ब्लड सेल्स का स्क्वायर आ रहा है उसका साइज है मीडियम। सो नाउ अब क्या आ रही हैं 1 over 4 millimeter मल्टीप्लाई बाय 1 over 4 millimeter squares, it will come out 1 over 16 millimeter squares. Now you calculate the volume. For calculating volume, you will multiply the area multiplied by the depth of each chamber, and the depth remains same for the case of WBCs, and it will be 1 over 10 millimeter. So you multiply 1 over 16 millimeter cube by the 1 over 10 millimeter, and the volume will become out 1 over 60 millimeter cube. So this is the volume of your red blood cell, this is the volume of RBC. So in that way you are going to calculate your RBC's number and your red blood cells number in your blood. सो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव सम डाउट्स देन आंसर क्वेश्चंस मी in the comment section. I will answer to you, and also tell me how I improve this content for you. And if you ask some question, then comment me. And if you like this video, please subscribe this channel, and also like my video. Please press the bell icon so that you could get the notification of all the videos which I have uploaded. So thank you very much. Allah Hafiz.